प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हटाओ। वंदे माता की पुकार। किन्ने चलेगा सरीदार It's off grid. धरती माता की एक ही पुकार। Bohemia, SLP सारे धरती माता की एक ही पुकार। धरती माता की एक ही पुकार। धरती माता की एक ही पुकार। മറന്ന് കിടന്ന് മറന്ന് കീഞ്ഞ് പാഞ്ഞ് ലോകം മാറി വേലി ചാടി വളപ്പ് മാറി തേടി ചാഞ്ഞ തോടി ചാടി മെയ്യറിഞ്ഞ് കാലറിഞ്ഞ് ഞാനകന്ന പാത മാറി കാലിലായ ചോടി മണ്ണ് തട്ടി മാറ്റി ഞാനലഞ്ഞ് കൂടി വിട്ട റൂഹ് മാറി കാറമുള്ളി മുറിച്ച് കയറി ചിന്തയും ഒരുണ്ണമുണ്ട് വന്നണഞ്ഞ് മുന്നിലെന്ന് വെക്കുന്ന മോനത്തേക്ക് മുഷിലായി കോളിംഗ് ആയി ഫക്ക് മീ ain't stuck with any സൗത്തിന്റെ കീശക്കായി സ്കോപ്പ് കക്കാനറിയില്ല നയിപ്പെന്ന നയിപ്പ് ആരാന്റെ കീപ്പെട്ട് വന്ന് കൈകൂപ്പ് കാലം കെട്ട് കോലം കെട്ട് കയ്യിലാക്കി ഹൈപ്പ് സൗത്തിന്റെ കീശക്കായി സ്കോപ്പ് കക്കാനറിയില്ല നയിപ്പെന്ന നയിപ്പ് ആരാന്റെ കീപ്പെട്ട് വന്ന് കൈകൂപ്പ് കാലം കെട്ട് കോലം കെട്ട് കയ്യിലാക്കി ഹൈപ്പ് കായ് 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 നായ് 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 Yo, bitches in the kitchen going home with the stitches, so glitches on my bitches fucking moan with the dishes lady looking at my inches while I'm fucking with the ditches, dropping panties in the kitchen area with the foreign patches, licking pussy like a kitten, sticking to see on my dick, throwing money for a bitches more than me and a killer tickets. ദുനിയാവിലാരാണ്ട ഞമ്മക്ക് പെരിയോന് ഞാനാണ്ട മൂത്തോന് നിക്കണ്ട കോർക്കാന് ആഹിറത്തിലായിരത്തിലൊരുവനായി ഞാൻ നികത്തി ചേർത്ത് തിന്ന് കടകളഞ്ഞ ആയിരങ്ങൾ ഞാൻ പരത്തി ദുനിയാവിലാരാണ്ട ഞമ്മക്ക് പെരിയോന് ഞാനാണ്ട മൂത്തോന് നിക്കണ്ട കോർക്കാന് പെരിയിൽ നിന്ന് കട്ടതല്ല വീട് വളപ്പ് വിട്ടതല്ല വാപ്പ തന്ന പുത്തനല്ല പൊടിയെടുത്ത് വിട്ടതല്ല നായിനെ പറ്റിച്ചതല്ല എന്റെ കൂറ്റി വിറ്റ കായി മാറി ഞാൻ കളിച്ച നാട് മാറി ഓല മേഞ്ഞ വരെ പൊളിച്ച് ചാമൊഴിച്ച കാർ പൊറച്ചു വന്നിറങ്ങി ബെൻസ് കാറിൽ ചെന്ന് കയറി കണ്ട ബാറിൽ പത്തി വിറ്റ നായി വാങ്ങി കാറും ബസ് പൂച്ച പന്നി കായ് 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 നായ് 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 കായ് 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 നായ് 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 കായ് 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 നായ് 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 കായ് 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 ഞാനിരുന്ന് കായില്ല കയ്യിലെന്റെ മുത്തമ്മ കാലകത്തി വെച്ചപ്പോ കരി പിടിച്ച തത്തമ്മ ഞാനിരുന്ന് കായുമ്മ കയ്യിലെന്റെ മുത്തമ്മ കാലകത്തി വെച്ചപ്പോ കരി പിടിച്ച തത്തമ്മ ഞാനിരുന്ന് കായുമ്മ 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 കയ്യിലെന്റെ മുത്തമ്മ पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हटाओ। हर घर की हर घर की ਮਸੀ ਬੂਟੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮਸੀ ਬੂਟੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਲਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗਣਗੇ ਬੀਜ ਬਿਲੋ ਪੋਪੀ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਲੇ ਨੂੰ ਕਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਪਹਿਰਾ ਤੇਰੀ ਪਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕੁੜੇ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਡੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਤੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮਸੀ ਬੂਟੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਏ ਨੇ ਆਓ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮਸੀ ਬੂਟੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਛੇ ਫੁੱਟੇ ਜੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੱਕ ਟੌਪ ਸ਼ੈਂਦਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੱਥ ਨੀ ਸਰਕਲ ਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੜਾ ਮੁੱਕਾ ਖੜ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਮਤ ਨੀ
इससे क्या होता है आपको तुरंत जो है एक सब वाक्य निर्माण का और ऐसा वाक्य निर्माण जो आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। शब्दों वाला उस तरह का गा सकते हो है ना। तुम लोग खेल के महत्व को नहीं, किसी एक खेल में कितने प्लेयर होते हैं, कैसे खेला जाता है, तो जीके टाइप का अभी ना बिल्कुल बढ़िया लीग खेला। कहानियाँ सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। कहानी सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो करना पढ़ाई लिखाई संबंधित जो सब चीज़ याद हो जाता था। सामान्य हिंदी में बीएड की उसी का पढ़ा हुआ हूँ, बीएड एंट्रेंस की तैयारी का सामान्य हिंदी पढ़ा हुआ हूँ। आज तक मैंने सामान्य हिंदी कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन अभी भी समास संधि चाहे जो हो, एक बार में मैं बताऊँ संधि पूरा खत्म कर दूँ अभी 1 घंटे के अंदर समास खत्म कर दूँ, सब कुछ सब रटा रटाया पड़ा हुआ है। तो आप है कि मतलब कितने तत्लीनता से कितना तत्परता से किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए आप तैयार होते हैं। सीखने का जो नियम है, अधिगम आप लोग आगे पढ़ेंगे, अधिगम एक चैप्टर है, उसमें सीखने का नियम आता है। तो उससे अभ्यास का नियम होता है, तत्परता का नियम होता है, पुनरावृत्ति का नियम होता है, कई नियम है उसमें। अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम चलता है, समझ रहे हैं। उसके बाद मैं इंट्रेंस दिया, उसमें मेरी तबीयत खराब हुई और 10,000 रैंक आया, सरकारी विद्यालय नहीं मिला। तो मैं कहा कि मैं सरकारी विद्यालय से ही बीएड करूंगा, नहीं तो बीएड नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन के लिए कितना फीस ज़्यादा लगता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से घर वालों के को जो है बोझ लगे, पैसे का बोझ पड़े। तो फिर मैं उसको छोड़ दिया, मैं बैंक की तैयारी करने लगा। बैंक की तैयारी भी मैंने किया, बैंक की तैयारी में 2 बार मेरा कलर का निकला, पीओ का नहीं निकला। तो कलर का इसलिए मैंने इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि उस समय केवल वेतन उसका था 14,000 रुपये मात्र, समझ रहे हो। हम सोच 14,000 रुपये में होगा क्या, 14,000 रुपये में होगा क्या, इसलिए फिर मैं बीएड एंट्रेंस की तैयारी दी। उसमें 5,000 रैंक आया, सरकारी विद्यालय मिला, बीएड हुआ। फिर मैं एक इलाहाबाद गया, इलाहाबाद जो है फिर पढ़ना शुरू किया। इलाहाबाद गया, 12-14 घंटा पढ़ता था। तीसरी बार में पहली बार मैंने नेट का एग्जाम ऐसे दे दिया, ऐसे ही नेट का एग्जाम दे दिया बिना कुछ पढ़े लिखे, फॉर्म भर के सीधे डायरेक्ट जाके नेट में बैठा। 48% रिजल्ट आया, नेट होता था 60% पे। और तब मैं कहा कि जब मैं बिना पढ़े लिखे 48% जान रहा हूँ और जब मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो कहाँ चला जाऊँगा, ये समझो। तो 60%, उसके बाद सिर्फ 66% पे नेट हुआ। फिर उसके बाद मेरा JRF हुआ, JRF 82% मेरा रिजल्ट आया। उसके बाद मतलब ऐसे होती गई, पढ़ाई निकलता गया और ये समझो 9 नौकरियां मुझे टीचर की लगी, जिसमें सबसे बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। 9 नौकरियां लगी, झारखंड में 2 लगी, 2 दिल्ली में लगी और बाकी सब यूपी में लगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मतलब कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। आदमी को कहीं से भी शुरू कर सकता है और कहीं न कहीं अच्छे मुकाम पे वह पहुंच सकता है। और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा है, लेकिन यह है कि मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब तुम कभी अपने आप को मतलब हीन मत समझो, क्योंकि जिस स्थिति में तुम हो उस स्थिति में बहुत लोग नहीं हैं। तुम लोग, तुम्हारे पास तो 2 हाथ गोड़ पैर सब कुछ है ना, खाना खा रहे हो अच्छे से ना। बहुत लोग खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, जो खाना अच्छे से खा रहे हैं उनके हाथ पैर गोड़ नहीं है, कुछ नहीं, विकलांग हो। उसी से अच्छी पोजीशन में तुम हो कि नहीं हो। लेकिन इस चीज़ का कभी अभिमान भी नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें लगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जब लगे कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत आगे जा रहा हूँ, जो तुमसे आगे हैं उनको देख लो तो ठहर जाओगे। और फिर जो तुम्हें लगेगा कि हाँ नहीं बहुत मैं नीचे हूँ, बहुत बेकार हूँ, तो तुमसे भी जो नीचे जो है उनकी तरफ देख लो कि कम से कम उनसे तो ऊपर हो गए। इसलिए जीवन में जो है समन्वय बना के रखना चाहिए, सामंजस्य बना के रखना चाहिए। कहते हैं कि न कभी उड़ना चाहिए और न कभी फड़फड़ाना चाहिए। जीवन जो है धीरे धीरे चलना चाहिए। कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसलिए धीरे धीरे गति से सारी चीजें होती रहती हैं। जीवन में 3 लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। एक जिनकी कंडीशन हमारे जैसे हो, जो तुम्हारे दोस्त होते हैं। एक लोग होते हैं जिनकी कंडीशन तुमसे अच्छी हो, जो तुम्हारे आइडियल हो सकते हैं। और तीसरे लोग होते हैं जिनकी कंडीशन तुमसे खराब हो। अगर तुम कभी अपने आप को लो फील करो तो जो तुमसे खराब कंडीशन में है उनको तुम देख सकते हो। कभी तुमको अगर अपने बहुत घमंड हो, जो तुमसे ऊपर है, उनको देख सकते हो। बाकी तो तुम्हारे दोस्त है तुमको तुम्हारी हैसियत और औकात दिखाने के लिए। तो इसी क्रम में हम अपने अग्रज डॉक्टर विवेकानंद पाटिल सर से अनुरोध करें कि सर आए, सर भी अपने अनुभवों को
शक्तियाँ संभावनाएं आपके भीतर बहुत सारी है, बस आपको पता नहीं है। वो पता हम बताते हैं कि आप किस फील्ड में जाएंगे, कौन खेलकूद में जा सकता है, कौन संगीत में जा सकता है, कौन शिक्षक बन सकता है, कौन समाज सेवी बन सकता है। ये हमारी आंखें देखती रहती हैं, पहचानती हैं प्रतिभा। तो उस हिसाब से डायरेक्शन दे दिया जाता है और जो उसको पकड़ लिए, उसको सचमुच में ग्रहण कर लिए, वो आगे बढ़ जाते हैं। यहीं से आपके कई बच्चे गए हैं बाहर, जो कई महाविद्यालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, कोई समाज सेवी बन गए, कोई बड़े बड़े नेता बन गए। तो इस तरह से आपके अंदर की जो संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, उसकी एक परंपरा है अच्छे विद्यार्थियों की यहाँ। तो आप भी उसी क्रम में। एक और उसी पर कथा थी जो सुबोध जी ने बताया। वो यही है, इसको सीखना है। बहुत कमजोर बच्चा है विद्यार्थी, गुरु जी पढ़ा के हार गए, जो कुछ समझ में आए, बेचारा परेशान, उसको भी परेशानी कि हमको याद क्यों नहीं हो रहा है कुछ। रोने लगे। गुरु जी ने बुलाया, कहा इधर आओ इधर आओ, अपना हाथ दिखाओ। देखे, अरे बेटा तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम ऐसा करो सामान बांधो और घर जाओ, जितने मेहनत कर रहे हो बिना मतलब का, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओ, जाओ। तो थोड़ी देर बाद वो तो उस समय नहीं समझ में आया उसको, जाके बैठ गया, नहीं जाना चाहता था घर। थोड़ी देर में उसको दिमाग में आया कि अच्छा पूछते हैं गुरु से कि विद्या की रेखा होती कहाँ। तो गया, कहा गुरु जी विद्या की रेखा कहाँ होती है हाथ में। तो कहा कि देखो यही विद्या की रेखा है, ज्ञान की रेखा यही तुम्हारे हाथ में नहीं है, धुंधली है, यही होती तुम विद्यार्थी होते। अच्छा, तो गया, पता नहीं कहाँ से नुकीला पत्थर उठाया और उस जगह पे उसने चीर दिया हाथ को और दौड़ता हुआ आया, कहा देखिए गुरु जी मैंने विद्या रेखा बना दी। गुरु जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि बच्चा इस तरह से कर लेगा। उसका हाथ मलहम पट्टी करवाए, धोए और फिर उसको बड़े प्रेम से कहे कि तुम घबराओ नहीं, अब तुम सीख जाओ। जब इतना लगन तुम्हारे भीतर है तो धीरे धीरे अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास से मत भागना। जो हम लोग दोहा पढ़े हैं ना, करत करत अभ्यास से जलमति होत सुजान, असरी आवत जात सिल पर परत निशान, वह जो दोहा है वो इसी बात को संकेत करता है। तो अंत में वो बच्चा फिर मेहनत करने लगा और आगे चल के बहुत बड़ा विद्वान बना। तो इस तरह की बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें जब बच्चों को लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर कोई क्षमता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके अंदर कुछ न कुछ कला है, कुछ न कुछ विशिष्ट कला संपन्न हम सभी हैं। उस कला को बस पकड़ना है, पहचानना है और उस कला का विकास करके अपनी सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा जब हम करेंगे तो राष्ट्र की सेवा खुद ब खुद हो जाएगी। राष्ट्रीय सेवा योजना का हिस्सा हम खुद बन जाएंगे, आजीवन बने रहेंगे। लेकिन राष्ट्र की सेवा करने से पहले अपने प्रतिभा को तो निखारना पड़ेगा, तभी आप किसी योग्य हो सकते हैं। किसी भी काम के योग्य जब आप बन जाएंगे तो आपकी राष्ट्र की सेवा में वो प्रतिभा लग जाएगी, योगदान हो जाएगा। अब राष्ट्र है क्या चीज़, उसकी सेवा कैसे करेंगे? कि जो कुछ भी, एक तो है भौगोलिक नक्शा राष्ट्र का जो आपके सामने रहता है कि यही हमारा राष्ट्र है, एक उससे भी बड़ा व्यापक नक्शा है। जहाँ तक आपकी बुद्धि जाए, जहाँ तक आपका मन मिल रहा हो, जहाँ तक के लोगों के हृदय मिल रहे हो, उस बाउंड्री को पार करके वो सब कुछ अपने राष्ट्र के अंतर्गत व्यापक जो उसका नक्शा है, उस अर्थ में पूरा विश्व ही आपका एक परिवार है और सब पूरे विश्व के परिवार से, हर सदस्य से, जहाँ भी उस जो राष्ट्र की संकल्पना आपके भीतर है, उसके नदी से, निर्झर से, पेड़ से, पौधों से, लताओं से, पत्थर से, उस मिट्टी से, सब चीज़ों से जब आप प्रेम करते हैं तब का एक स्वरूप आपके सामने खड़ा होता है। और जब उसको सुरक्षित करने के प्रयास में लग जाते हैं, अपना जीवन खपाते हैं, तो राष्ट्रीय सेवा योजना की बात उसका हिस्सा बन जाता है। तो इतने बड़े व्यापक लक्ष्य को पाने के लिए अभी से आप प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है।